بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں تراویح۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 11ویں پارے سے 12ویں پارے کے 1/4 تک تلاوت کی گئی۔ شروع میں سورہ توبہ کے باقی 5.5 رکوع پڑھے گئے، جن میں جنگ تبوک کے موقع پر منافقین نے جو طرز عمل اختیار کیا اور بعض ایسے مسلمانوں کا جو تھے تو مخلص مگر سستی اور کاہلی کی بنا پر جنگ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے، ان سب کا ذکر کیا ہے۔ پہلے یہ بیان کیا گیا کہ جب تم تبوک کے سفر سے واپس لوٹو گے تو یہ منافقین اپنے رویے کے بارے میں تمہیں مطمئن کرنے کے لیے گھڑے ہوئے عذرات پیش کریں گے۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ ہم تمہارے یہ من گھڑنت بہانے ماننے والے نہیں۔ اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ تم اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ تم واقعی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو۔ ابھی تو اسلام سے ان کی بدخواہی کا یہ حال ہے کہ اول تو یہ اس کے راستے میں کچھ خرچ ہی نہیں کرتے، اور اگر حالات سے مجبور ہو کر کچھ کرنا بھی پڑے تو اسے اپنے اوپر زبردستی کا جرمانہ سمجھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسی کوئی گردش آ جائے کہ جس سے ان کی جان ان سے چھوٹ جائے۔ حالانکہ حقیقت میں گردش خود ان پر ہے، اور گردش بھی بہت بری گردش، یعنی آخرت میں نجات سے محرومی۔ کچھ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا، فرمایا کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں طرح کی کمائی ہیں، ان پر امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت فرمائے گا۔ اے نبی، آپ ان سے صدقہ لے کر انہیں پاک بنا دیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سامان بنے گی، اور ان سے یہ بھی کہیے کہ اب اللہ، اس کا رسول اور مومنین تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، اور بہرحال تم عنقریب اللہ کے حضور پیش کیے جانے والے ہو۔ منافقوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے اور ان لوگوں کے لیے ایک خفیہ اڈہ فراہم کرنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں۔ آپ اس میں کبھی نہ کھڑے ہوں۔ آپ کے کھڑے ہونے کے لیے وہ مسجد سب سے زیادہ حقدار ہے جس کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ نفاق پر بنائی ہوئی عمارت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے سمندر میں نکلی ہوئی کگر پر عمارت بنائی ہو، وہ کسی بھی وقت اپنے رہنے والوں سمیت دوزخ میں گر جائے گی۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، وہ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی، اور اب قرآن میں بھی۔ اللہ سے جنت کا یہ سودا کرنے والے دراصل ہمیشہ توبہ کرتے رہنے والے، عبادت گزار، اپنی اصلاح اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں۔ ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورت ختم کرتے وقت مسلمانوں کو بعض اہم ہدایات دی گئیں۔ پہلی ہدایت یہ فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو شرک کے ہر شائبے سے پاک کر کے صرف خدا کے لیے جینے اور خدا کے لیے مرنے کے مقصد پر قائم کر دیا جائے، اور حق کے سوا اور کسی طرح کی حمایت کا شائبہ بھی ان میں باقی نہ رہنے دیا جائے، کیونکہ صرف رشتہ داری اور تعلق کی بنا پر جو حمایت ہوتی ہے اس سے نفاق اور کفر کی راہیں کھلتی ہیں۔ جن مسلمانوں کا سستی اور کاہلی کے سبب جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر بائیکاٹ کیا گیا تھا، ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت سنائی گئی، اور اہل مدینہ اور بدوؤں میں سے جو تائب ہو گئے ان کو نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ اور حق کے لیے جینے والوں سے خود کو وابستہ رکھو، تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر تمہاری کمزوریوں کی اصلاح ہو سکے۔ سورت یونس میں قریش کی اس حالت پر افسوس کا اظہار کیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص پر یہ کتاب حکمت اتاری، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کی قدر کرتے اور ایمان لاتے۔ اللہ سرکش لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے،
इसकी वजह ये है कि वो रहमत करने में तो जल्दी करता है, लेकिन कहर करने में जल्दी नहीं करता। वो ऐसे लोगों को मौका देता है कि वे सरकशी में अच्छी तरह भटक लें, कोई हसरत बाकी ना रह जाए और अल्लाह की हुज्जत तमाम हो जाए, वरना वो जब चाहे उनका किस्सा पाक कर दे। ये पिछली उम्मतों के अंजाम से सबक क्यों नहीं लेते? कुरैश का मुतालबा ये था कि इस कुरान के अलावा कोई दूसरा कुरान लाओ जिसमें कुछ हमारी बातें भी मानी गई हों, या अब तरमीम कर लो और कुछ दो और कुछ लो के उसूल पर मामला कर लो। इसका जवाब दिया गया कि आप बता दीजिए कि मुझे तरमीम या तब्दीली का कोई इख्तियार नहीं है। ये तो खुदा के अहकाम हैं जिनकी तामील के लिए मैं आया हूँ। अगर खुदा का हुक्म ना होता तो मैं हरगिज़ इसे पेश ना करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि जिनके अंदर सलाहियत है वे इस किताब पर ईमान ला रहे हैं। रहे वे लोग जो अंधे और बहरे बन चुके हैं, तो ये खुद अपने आमाल की बदौलत इस हाल में पहुंचे हैं। खुदा ने इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। जिस अजाब और आखिरत की उनको धमकी दी जा रही है, उसके लिए मुतालबा करते हैं कि वो जल्दी आ क्यों नहीं जाती। हालांकि जब वो आ जाएगी तो महसूस करेंगे कि एक घड़ी से ज़्यादा हमने दुनिया में वक्त नहीं गुजारा। हकीकत ये है कि हर उम्मत के लिए एक पैमाना मुकर्रर है। जब वो पैमाना भर जाएगा तो खुदा के पास उसको 1 मिनट की भी मोहलत नहीं मिलेगी। ये अगर इतनी जल्दी मचाए हुए हैं तो उनसे पूछो कि अजाब का मुकाबला करने के लिए उन्होंने क्या सामान तैयार कर रखा है। उस वक्त तो उनका ईमान लाना भी बेकार होगा। ये लोग आखिर अपनी शामत क्यों बुला रहे हैं? अल्लाह की इस अजीम नेमत और रहमत को क्यों इख्तियार नहीं करते जो कुरान की शक्ल में नाजिल हुई है और जिसके आगे दुनिया के तमाम ख़जाने हेच हैं। आयत 21 में है कि लोगों का हाल ये है कि मुसीबत के बाद जब हम उनको राहत का मज़ा चखाते हैं तो फ़ौरन ही वो हमारी निशानियों के मामले में चालबाजियाँ शुरू कर देते हैं। उनसे कह दो, अल्लाह अपनी तदबीर में तुमसे ज़्यादा तेज़ है। उसके फरिश्ते तुम्हारी सब मक्कारियों को लिख रहे हैं, और वो अल्लाह ही है जो खुश्की और तरी में तुमको चलाता है। चुनाचे जब तुम कश्तियों में सवार होकर बादे मुवाफ़िक पर खुशी खुशी सफ़र कर रहे होते हो और फिर यकायक बादे मुखालिफ का ज़ोर होता है और हर तरफ से मौजों के थपेड़े लगते हैं और मुसाफिर समझ लेते हैं कि तूफ़ान में घिर गए, उस वक्त सब ज़रूर अल्लाह को इखलास के साथ पुकारते हैं और दुआ करते हैं कि अगर आपने हमें निजात दे दी तो हम आपके शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। मगर जब हम उनको बचा लेते हैं तो ये दोबारा हक से मुनहरिफ होकर ज़मीन में बगावत करने लगते हैं। लोगों, तुम्हारी ये बगावत तुम्हारे खिलाफ पड़ेगी। दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, ये मज़े लूट लो, फिर तुम्हें हमारी ही तरफ पलट कर आना है। उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे थे। दुनिया की इस ज़िंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी उतारा तो ज़मीन की पैदावार जो इंसान और जानवरों की खुराक है खूब घनी हो गई। फिर ऐन उस वक्त जब ज़मीन अपने बहार पर थी और खेतियां लहलहा रही थीं और उनके मालिक समझ रहे थे कि हम अब उनसे फ़ायदा उठाने पर कादिर हैं, यकायक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने उसे गारत करके रख दिया, गोया कल वहाँ कुछ था ही नहीं। इस तरह हम अपनी निशानियाँ खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। खुदा तुम्हें सलामती वाले घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। हर वो शख्स जिसने जुल्म शिर्क किया है, अगर रोज़े क़यामत रुए ज़मीन की दौलत भी हो तो अजाब से बचने के लिए वो उसे फ़िदिये में देने के लिए आमादा हो जाएगा। जब ये लोग अजाब देखेंगे तो दिल ही दिल में पछताएंगे, मगर उनके दरमियान पूरे इंसाफ से फ़ैसला किया जाएगा और उन पर कोई जुल्म ना होगा। सुनो, आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है सब अल्लाह का है। सुनो, अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर अक्सर इंसान जानते नहीं कि वही ज़िंदगी और मौत देता है और उसी की तरह तुम्हें लौटकर जाना है। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरह से नसीहत कुरान आ गई। ये वो चीज़ है जो दिलों के अमराज की शिफा है। जो इसे माने उनके लिए हिदायत और रहमत है। ए नबी, कहो कि ये अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी मेहरबानी है कि उसने ये चीज़ भेजी। इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं। ए नबी, तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरान में से जो कुछ भी पढ़ते हो, और लोगों, तुम भी जो कुछ करते हो, उन सब के दौरान हम तुमको देखते रहते हैं।
आसमान और ज़मीन में ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ख्वाह वो छोटी हो या बड़ी, जो तेरे रब की नज़र से पोशीदा हो और एक साफ दफ्तर में दर्ज ना हो। सुनो, जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें किसी तरह का रंज और खौफ ना होगा। ये वही हैं जो ईमान लाए और तक़वा का रवैया इख्तियार किया। दुनिया और आखिरत दोनों में उनके लिए खुशखबरी है। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही कामयाबी है। और हम बनी इसराइल को समंदर से गुजार ले गए। फिर फ़िरौन और उसके लश्कर ने जुल्म और ज़्यादती की गरज से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि फ़िरौन जब डूबने लगा तो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूँ बनी इसराइल के खुदा पर, जिसके सिवा कोई हकीकी खुदा नहीं, और मुसलमान होता हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि उससे पहले तक तू नाफरमानी करता रहा और फसादियों में से था। तो हम तेरी लाश को बचा कर रखेंगे ताकि बाद की नस्लों के लिए तू इबरत हो। हालांकि बहुत से इंसान हैं जो हमारी निशानियों से गफलत करते हैं। सूरा हूद के 4 रुकू पढ़े गए। उनमें पहले बतौर तमहीद कुरान की ये खुसूसियत बयान की गई कि लोगों की तालीम और तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने इसको इस शक्ल में उतारा है कि पहले सिर्फ उसूल और बुनियादी बातें जंचे तुले अंदाज में बयान की गईं, यानी इब्तिदाई मुकम्मल सूरतें, फिर बतदरीज तफसीलात बयान हुई। तमहीदी जुमलों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इस पैगाम की वजाहत की गई कि ये अल्लाह वाहिद की बंदगी और तौबा रो इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह वाहिद की तरफ रुजू कर लें। अल्लाह एक मुकर्रर मुद्दत तक उनको ज़िंदगी की नेमतों और अपने फ़ज़ल से मालामाल करेगा, और जो लोग उससे मुंह मोड़ेंगे उनके लिए एक बड़े अजाब का दिन सामने है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में अजाब से मुराद इस्लाम के मुकाबले में शिकस्त की पेशगोई है। जज़ा और सज़ा के मुनकिरीन को और अजाब का मजाक उड़ाने वालों को तंबीह की कि ये दुनिया बच्चों का खेल नहीं है। अल्लाह ने इसे इसलिए बनाया है कि वो देखे कि लोग कैसा अमल करते हैं। इंसान का अजीब हाल है कि जब खुदा की पकड़ में आ जाता है तो बिल्कुल मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है, लेकिन जब खुदा ढील देता है तो अकड़ने लगता है और शेखी बघारने लगता है। थोड़े लोग ही ऐसे निकलते हैं जो मुसीबत में सब्र की और नेमत में शुक्र की रविश इख्तियार करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए खुदा के यहाँ मग़फ़िरत और अजर अजीम है। बताया गया कि ईमान की तौफीक सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिनकी फितरत मस्ख़ नहीं हुई। वे कुरान को अपने दिल की आवाज़ समझेंगे। रहे वे लोग जिनकी फितरत का नूर बुझ गया है तो वो दोज़ख को देखकर कायल होंगे। इन दोनों गिरोहों की मिसाल ऐसी है जैसे एक गिरोह अंधों और बहरों का हो और दूसरा गिरोह आंखें और कान रखने वालों का। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की सरगुज़श्त सुनाई, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि नूह अलैहिस्सलाम को भी आप ही की तरह उनकी कौम की तरफ भेजा गया था, और उनकी कौम ने भी वही किया था जो आपकी कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर रही है। बिलाखिर उन पर खुदा का अजाब आया और वे सब तूफ़ान में गर्क कर दिए गए। अगर ये लोग बाज ना आए तो इनका अंजाम भी उन्हीं जैसा होगा। आप ना घबराएं, अल्लाह आपको और आपके साथियों को सुरखरू करेगा। शर्त यही है कि सारी मुखालिफतों के बावजूद सीधे रास्ते पर जमे रहें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितने ज़माने तक यानी 950 बरस सब्र करते रहे। आज की तरावीह का बयान ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इसकी बरकतों से हमारे मुल्क और शहर के हालात तब्दील फरमाए, आमीन। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।